We have learned about the nominative case of personal pronoun. After the nominative case, there is possessive case of these pronouns. So here we can see on screen that me and mine. This is a possessive case of I. Our and ours. These two words are the possessive case of we. Your and yours, possessive case of you. His, possessive case of he. Her and hers, possessive case of she. Their and theirs, possessive case for they. And its is the possessive case of it. Okay, what is the meaning of possessive case? Possessive से आप जैसा कि ये वर्ड से आप समझ सकते हैं, पोजेसिव मीन टू पोजेस समथिंग, रखना, ओन करना, ओनरशिप में होना, बिलोंग करना। कि जब कोई चीज़ हमारे से बिलोंग करती है, हमारी पोजेशन में है, हमारी, देन द पोजेसिव केस ऑफ दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड। और कुछ सिंपल सेंटेंसेस की हेल्प से इन्हीं पोजेसिव केस का इस्तेमाल को देखते हैं। दिस इज़ माई बुक and this book is mine. Sentence and meaning is the same but structure is different. And why these two sentences are shown here? Because to understand the possessive case of first person I का जो possessive case my और mine, ये देखिए कि यहाँ ये possessive case यूज़ किया जाएगा इस sentence में कि this is my book या फिर this book is mine या ये book मेरी है। तो ये structure के according my और mine का इस्तेमाल किया गया है जो कि possessive case है I का, और ये शो करता है हमारी ownership को, हमारी पोजेशन को। डेट इज आवर हाउस, डेट हाउस इज आवर्स। अगेन ये पोजेसिव केस फॉर वी। दिस इज हिज टेबल। अब हिज के लिए चूंकि पोजेसिव केस में एक ही वर्ड है हिज, तो इस्तेमाल किया जाता है फॉर पोजेशन। दिस इज हिज टेबल। देयर इज हर ऑफिस और डेट ऑफिस इज हर्स। हर एंड हर्स आर पोजेसिव केस फॉर शी। देयर इज योर लंच। That idea of yours was excellent. Your and yours, possessive case for you, and according to the structure, your and yours are used in these sentences to show the possession कि ये आपका लंच है और आपका आइडिया बेहतरीन था, excellent था, तो ये belong, आइडिया belong करता है आपसे, तो यहाँ yours का इस्तेमाल किया गया है। Their business is going well. Their possessive case for they, उनका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, अब ये own करते हैं अपने बिजनेस को, and the business of theirs is going well. Again shows the possession theirs, their and their. These two words are possessive case for they. Okay, the last one its, possessive case for its के इस्तेमाल आज कुछ ज़्यादा हैं। देखिए the car needed its brakes repaired, तो ये its यूज़ किया जाता है for non living things. The house has lost its charm, का possessive case it जो कि house के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो उसका possessive case यूज़ किया गया है its to show the charm of house. The horse fell and got its legs broken. It is used for horse. For animals, it can be used. The jury gave its verdict in a few minutes. The jury, collective noun used for judges. तो collective noun चूँकि singular लिए जाते हैं, तो यहाँ collective noun के लिए its का इस्तेमाल ही किया जाता है, इस पे किसी gender का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे his या her नहीं यूज़ किया जाएगा। The fleet has reached its destination. Again collective noun is used here. The fleet, fleet is the collective noun used for ships. Neuter. अब ये दो sentences जो दिखाए गए हैं, इनका purpose ये है कि you can see that collective noun is always singular of neuter gender. ये किसी living thing के लिए यूज़ किया जाए या non living thing के लिए, इसको neuter gender ही consider किया जाएगा और singular consider किया जाएगा अगर उनकी collectively बात की जा रही है। Okay, let's see the last sentence. Committee were divided in their opinions. Again committee is a collective noun, but here it is not used because it is not taken singular. Why? क्योंकि बताया जा रहा है कि committee were divided in their opinions. It mean we are talking about their individuals. अब यहाँ हम उसको on the whole collectively बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके members की, individuals की बात की जा रही है. So that's why plural pronoun is used. They और they का possessive case their use किया गया है, और they सबके लिए use किया जाता है for all genders. Okay, the last one accusative case. Accusative case of pronoun, personal pronoun का accusative case. अब accuse से आप इसे समझ सकते हैं, बट यहाँ accuse का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को accuse करने वाले हैं, किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, but accuse mean when where some action is needed to cast someone. जब हमें कोई action किसी person की तरफ cast किया जाए, throw किया जाए, देन एक्यूजेटिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज। तो एक्यूजेटिव केस को देखिए, ये क्या है, मी एंड अस। अब आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मी एंड अस आर द केस ऑफ आई, जैसे वहाँ हमने देखा था माई एंड माइन फॉर द पोजेसिव केस, बट इन एक्यूजेटिव केस मी फॉर आई, अस फॉर वी, यू स्टैंड्स फॉर यू, हिम फॉर द ही,
हर फॉर शी, देम फॉर दे, इट फॉर इट। तो अंडरस्टैंड करते हैं इन्हें कुछ सेंटेंसेस। ही लुक्ड मी विद सरप्राइज, अब ही लुक्ड मी, उसने मुझे देखा, अब उनका एक्शन थ्रो किया गया मुझ पे, तो यहाँ पे प्रोनाउन मी का इस्तेमाल किया गया है। मी क्या है, ये पोजेसिव केस है, पोजेसिव केस जो कि हमारा पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस था आई। नेक्स्ट देखिए, मॉम फाउंड अस प्लेइंग इन द पार्क, अब अस स्टैंड्स फॉर आवरसेल्व्स यानी कि वी के लिए अस इसका एक्विजिटिव केस ऑफ वी, कि मॉम फाउंड अस प्लेइंग इन द पार्क। आई विल इनवाइट यू एट माई बर्थडे पार्टी, यू रिमेन्स द सेम, यू में कोई चेंज नहीं आती, यू का एक्विजिटिव केस भी यू की फॉर्म में ही यूज किया जाता है। वी कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन, कि हमने उसे बार बार कॉल किया, अब हिम स्टैंड्स फॉर ही, अब वी कॉल्ड हिम, अब ये एक्शन थ्रो किया गया, हमने उसे कॉल किया, वी भी प्रोनाउन है लेकिन हमने यहाँ सिर्फ एक्विजिटिव फॉर्म को मेंशन अंडरलाइन किया है, इसलिए कि आप आसानी से इसको आई हैव वार्न्ड हर अबाउट द इल विंड। आई हैव वार्न्ड हर मीन के किसी सिंगुलर फेमिनाइन जेंडर को इन्फॉर्म किया गया है कि आई हैव वार्न्ड हर, अब इसलिए प्रोनाउन हर का इस्तेमाल किया गया। हर इज द एक्विजिटिव फॉर्म ऑफ शी। considered it easy to move alone, she considers it easy, अब it ये है क्या है कि वो इसे अच्छा समझती है, इसको ये आसान समझती है to move alone इस बात को। अब ये एज एन एक्शन, एज ए फीलिंग, इसके लिए प्रोनाउन इट यूज किया गया है। द अथॉरिटी assured safety to all of them, अब them accusative form for they। it was an easy way to understand use of accusative case in sentence। प्रोनाउंस की ही कुछ और तफसीर और कुछ और काइंड्स के साथ